आपके स्टार्ट लाइव हो गए मैम, ठीक है? Okay, thank you. ओके। Good morning, good afternoon, students. Last class में we learned about the global environmental issues. So we are now we are now we are on the sixth unit. Okay, sixth unit of our course. It is the global environmental issues and the solutions to it. Okay, so there are two parts of this unit. One part talk about what are the major global environmental issues in today's time that I had taken in the last class. So what are these issues? Global warming, climate change, acid rain, ozone layer depletion, and the nuclear hazards. These are the basic global environmental issues. If we talk about in India's context, the acid rain is not a big issue for us. The pollution is a very, very big issue in Indian context. So we covered all these parts in the last class, like what is climate change, what is global warming, what is the acid rain, what is ozone layer depletion, how what is the cause of these problems, and how it's impacting the human life, and how we can control these things. So now in the today's class we gonna talk about environmental जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है इनके क्या सॉल्यूशन है और उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है. सो वी गोना टॉक अबाउट व्हाट आर द इन्वायरमेंटल एथिक्स वी नीड, व्हाट आर द legislative provisions, what are the major global institutes which deal with the environmental issues, what are the major protocols or conventions held globally to deal with the environmental problems. And then we talk about the legislation in the India, like what are the legislative provisions in the India to deal with environmental problems. So we're going to talk about the laws which are implemented in India to protect the environment. These will be today's content. Okay. I'm live now. So whatever query, any suggestion, if you guys have any query or suggestion, so you can share. So you can share, or if you have any answer, any question, you can put it into live event Q&A section. So I gonna answer all the questions in the end. Okay. So a lot of the students were asking me in the last class, like what is a book they can read. Okay, so today I'm gonna share you the link of a OneDrive. Okay, OneDrive folder. It is my folder where I put all the presentations, like the presentation of pollution, the unit 5, the presentation of this unit, the global environmental issues, unit 6, and the presentation and slides of the unit 7, which is what? Environmental, human communities and the environment. Okay, so both of these three units are on this in this folder. uh, Other than this, what is there? There is both the English medium and Hindi medium study material provided by SOL, and the book. You guys are asking me na, so I told you the book last time, Irek Barucha. You can buy it also. I have a soft copy also, so I also shared that one. Okay, so this is the link I'm sharing with you. You can see it is in your this chat box, question answer chat box. So there is a link, you can open it after the class, है ना. अभी एक बार ट्राई करके देखना चाहो तो देख लो ओपन हो रहा है कि नहीं, है ना. जस्ट ट्राई इट, but download it after the class. Now we're gonna study. First of all, we're gonna complete our class. Then you guys can, what you can do, you can download this from this link, all the presentations, and if there is any problem you can tell me in the next class. Okay. Exam as one question, one student asked,
मैम एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, वी डोंट नो नाउ, एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही होंगे। और अभी कोविड की अगर सिचुएशन जिस तरह से होगी उससे आपको पता चलेगा, बट अभी तक तो द क्लासेस आर ऑनलाइन, सो द एग्जाम आल्सो गोना बी ऑनलाइन। ओके, सो आई हैव शेयर्ड दिस थिंग ना विथ यू, लिंक आपको दिखाई दे रहा है, लिंक आपके चैट बॉक्स में। सो प्लीज आप इस लिंक पे चेक कर लीजिए, लिंक ओपन हो रहा है, और फिर आप इससे क्लास के बाद में इससे सारे प्रेजेंटेशन जो आज प्रेजेंटेशन दिया है वो भी, और प्लस इसके अलावा जो नोट्स हैं और जो बुक है, ई कॉपी है, सब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस फोल्डर के अंदर से। ठीक है, सो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, आज की जो क्लास है। तो मैंने बताया आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में, जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ल्ड वाइड जो इन्वायरमेंटल इश्यूज के साथ में डील करती हैं, जो प्रोटोकॉल्स या कॉन्फ्रेंसेस या कन्वेंशन इन्वायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए किए गए उनके बारे में। और फिर हम इंडिया में क्या लॉ का फॉर्म है या क्या 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 अवेलेबल है हमारे पास में लॉज इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंटल ethics and possible solution. So what is like environmental ethics? Environmental ethics is we need to protect the environment and every person have a equal right on their fundamental existence and have a clear like a clean environment to live and natural resources to use. Okay, but there is a very huge disparity we can see in the pure nation and in the rich nation, and the and rich people, how they are using the resources. They are not equally using the resources, so we need to minimize this gap. Then जो नेचर ग्रोस नेचर प्रोडक्ट्स है वो उसका जो शेयरिंग है वो मोर इक्विटेबल होनी चाहिए, सबको इक्वल उसका अधिकार होना चाहिए और वो सब में साथ में शेयर होनी चाहिए। फिर जो ट्राइब्स हैं और जो वुमेन है उन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने में, बिकॉज दे आर डिप्राइव्ड समहाउ, सो उनको इक्वल वो नहीं मिल पाता है। और अगर कोई भी क्लाइमेटी होती है, अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, तो उसका भी जो सबसे वनरेबल ग्रुप है उस पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। सो जो लोग मतलब जो लोग हैं जो कि ट्रेडिशनल लाइफ जीते हैं, देर आर पीपल हु वांट टू लिव अ ट्रेडिशनल लाइफ, सो दे आल्सो हैव द राइट टू वे टू चूज देयर लाइफ। वी कांट फोर्स एवरीवन टू बी यूज अ मॉडर्न लाइफ, एंड द ट्रेडिशनल लाइफ इज somehow more sustainable, so we need to, because everyone have a equal right on the natural resources. But if someone is misusing it or doing any damage to environment, then there should be penalties, there should be law to protect the environment. And when we see if the nature is recreated, then also the poor is excluded. So the poor, the vulnerable strata, the tribes, the women, they most of the time they are very vulnerable to every change, and when there is the change is like again fixed, then they also have the less right on that. Okay, so what is the solution? We need all should have a equal right on the environmental issues. They have a right to exist, and so everyone have in the human being and the other animals and other plants also. So we can't
हम उनकी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हम किसी और चीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकते ना, हम मतलब ओवर वी कांट बी ग्रीडी। So that's why we need to take care of the environment, we need to take care of everyone's needs and requirements. So लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि क्या क्या ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज है। इस क्लास में हम बात करेंगे कि जो ये इन्वायरमेंटल इश्यूज है इनको डील करने के लिए क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनसे डील करती है, और किस तरह के कन्वेंशन या प्रोटोकॉल्स या कॉन्फ्रेंसेस हुई गई हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये फर्स्ट सबमिट हुआ था। It is in 1972 Stockholm में. It is the world's first convention to make the environment a major and visible issue. Okay, so इसमें तीन कैटेगरीज के बारे में बात हुई थी कि एक तो ग्लोबल इन्वायरमेंट असेसमेंट प्रोग्राम हो कि इन्वायरमेंट की क्या अभी क्या now what is the condition of environment. It's talked first time in 1972 in the Stockholm. So they proposed a global environment assessment program. So it's basically a watch plan to see the environment. Okay, then environmental management activities need to be carried out through the worldwide. Then international measures to support assessment and management activities carried out at the national and international levels. So what was the major result of this conference? The United Nations Environment Program. So first is established in 1972 the United Nations Environment Program, UNEP. सो इसके जस्ट बाद में इंदिरा गांधी जी वेंट इन दिस स्टॉकहोम कन्वेंशन. सो आफ्टर coming to that, she made Indira Gandhi, that was our former prime minister at that time, she was the prime minister. So then she made a very big decision, very बहुत अच्छा दूरदर्शी decision, seeing the environment as a इशू, बिकॉज इंडिया में उस समय कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऐसे विजिबल नहीं थी, ना पोल्यूशन था, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हम देख नहीं पा रहे थे वर्ल्ड वाइड भी उस समय. तो शी took a step, and then India has our first environmental law, that is Wildlife Protection Act 1972. And in that act there is a lot of national park and wildlife sanctuaries were established. Because of that the wildlife and the forest are still protected. Otherwise अगर उस टाइम ऐसा स्टेप नहीं होता तो अभी तक बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होता. So that was a first step in India after this convention only. Then there are other worldwide environmental agreements and convention. So there is a convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora. It was adopted in 1963, but it came into the force in 1975. Okay. Then the Convention on Biological Diversity. Okay, it was adopted in 1972 and came into force in 1993. Then Montreal Protocol, it is for ozone layer, है ना, जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा था, जो अभी हमने ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज पढ़े थे तो उसमें हमने ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में पढ़ा था. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि केम इनटू फोर्स हुआ था 1989 में. ठीक है, उसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ. किस चीज के लिए? ग्रीन हाउस गैस इमिशन करने के लिए. ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि किस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. जो सन से आने वाली शॉर्ट वेव जो रेडिएशंस होती है उनको तो वो ग्रीन हाउस गैसेस आने देती है, और जो उसे टकराकर वापस जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जाती है उनको वो ग्रीन हाउस गैसेस एक लेयर की तरह रोक लेती हैं. तो इससे
अर्थ का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। तो इसका सॉल्यूशन के लिए क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 में, जो कि केम इनटू फोर्स हुआ 2005 में। तो किस तरह से क्या क्या हमारे टारगेट्स होने चाहिए ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन करने के, टेम्परेचर को हम कितना मेंटेन कर पाए, इसके लिए टारगेट्स इसमें डिसाइड किए गए थे। फिर इसी के कंटिन्यूएशन में आपका क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC, है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो क्लाइमेट चेंज है उसको कमबैक करने के लिए मिटिगेशन एफर्ट्स, क्या मतलब क्या क्या हम अडेप्टेशन और मिटिगेशन एफर्ट्स कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपका रियो समिट हुआ, जो UNEP हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसके तहत यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ, UNCD, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ, 1992 में रियो डी जनेरिया में हुआ, इसको अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर आपका UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जिस तरह से डिफोरेस्टेशन होता है, डेजर्ट ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपका 1994 में UNCCD हुआ। उसके बाद में बेसल कन्वेंशन हुआ 1989 में। वो किस लिए हुआ, जो हजार्डियस सब्सटेंसेस होते हैं उनके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए। वरना क्या होता है, जो हजार्डियस सब्सटेंसेस है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आके डिस्पोज कर देंगे। अब इसको प्रोडक्शन तो किसी दूसरी कंट्री ने किया, लेकिन डिस्पोज किसी दूसरी कंट्री में हो रहा है, तो उनको उस चीज का, और जो इन बहुत ही ज्यादा हजार्डियस है, उनके नुकसान भी बहुत ज्यादा होते हैं, हेल्थ इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट। तो इसलिए ऐसे सब्सटेंसेस का जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए ये आपका बेसल कन्वेंशन हुआ 1989 में, ठीक है। उसके बाद में आपका कार्टेजिया प्रोटोकॉल हुआ, है ना। सो बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, एक प्रोटोकॉल कि किस तरह से बायोसेफ्टी हो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, ये 2000 में हुआ। फिर आपका UN का क्या हुआ, रेड प्रोग्राम, है ना, रेड, और उसके बाद में रेड प्लस भी हुआ, ठीक है। तो 2008 में आपका रेड प्रोग्राम क्रिएट किया गया। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, एंड इसमें फिर बाद में एफोरेस्टेशन को भी जोड़ दिया गया, तो उसको हम रेड प्लस बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक तो इंडस्ट्रीज से आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या होता है, एक तो इंडस्ट्रीज से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, दूसरा क्या होता है, जो फॉरेस्ट है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज से तो वैसे इमिशन हो रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड का, जो इंडस्ट्रीज है अलग अलग, हमने बात की थी कि जो मतलब फ्यूल जिनमें यूज होता है, जिनमें कोल यूज होता है, तो उन सब के कंजप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, एनर्जी यूज के लिए यूज करते हैं। लेकिन फॉरेस्ट में क्या होता है, पेड़ होते हैं, पेड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड एक बायोमास के रूप में स्टोर रहती है। लेकिन अगर फॉरेस्ट कटेंगे
तो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड एट द एंड रिलीज हो जाएगी ना, वो स्टोर नहीं रहेगी। तो एक तरीके से ये भी सोर्स हो गया ना, क्योंकि जहां जो चीज स्टोर थी उसको हमने खत्म कर दिया, तो वो भी एक तरीके से सोर्स हो गया ना इमिशन का। वैसे वो जंगल कार्बन डाइऑक्साइड निकालती नहीं है, बट वो स्टोर करके रखते हैं, तो उनको हमने खत्म कर दिया, तो एक स्टोर का सोर्स खत्म हो गया। तो इसलिए जो डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से जो इमिशन ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इमिशन को वो कैप्चर करके रख रहे हैं, अगर वो नहीं रहेंगे जंगल तो इमिशन ज्यादा रहेगा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी। तो इसको कम करने के लिए यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम हुआ 2008 में, जिसको हम रेड के नाम से जाना जाते हैं। और इसमें पहले तो डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से किस तरह से कम करना है, फिर हम जंगल और लगाएंगे तो क्या होगा, उससे भी तो कार्बन बढ़ेगी ना, स्टोर और होगी, तो फिर इसमें एफोरेस्टेशन को भी जोड़ दिया गया। तो ये आपका हो गया रेड प्लस यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिडक्शन ऑफ इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड एफोरेस्टेशन। ठीक है। उसके बाद में आपका आया नगोया प्रोटोकॉल, है ना। ये इंटरनेशनल environmental protocol to assess to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefit arising from the utilization of the convention on biological diversity। ठीक है, जो जेनेटिकल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की वजह से जो जेनेटिकल रिसोर्सेज है, उसके लिए ये 2010 में। ये बहुत ज्यादा आपको इन चीजों को डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपका जो दो तरह का स्टडी मटेरियल है, हिंदी इंग्लिश। इंग्लिश वाले में ये दिया भी नहीं गया है, इंग्लिश वाले में केवल इंडियन उसके लिए दिया गया है, और हिंदी वाले में इंटरनेशनल भी दिए गए हैं। बट आपको एक कुल मिला के आइडिया होना चाहिए, जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज है जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, तो उसके लिए तो एक तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सबसे पहला कौन सा हुआ था। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 स्टॉकहोम, ये पहला मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज को एज ए मेजर इशू देखते हुए पहला वर्ल्ड का कॉन्फ्रेंस हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। फिर हमें ये पता करना है कि और प्रॉब्लम कौन सी है, ओजोन लेयर डिप्रेशन, तो उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। आपका क्योटो प्रोटोकॉल है ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन के लिए। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को खत्म करने के लिए। ठीक है, अब इसी के तहत जो आपके मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसकी अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। तो COP 24, 21, अभी रिसेंटली कौन सी हुई 25 सबसे रिसेंट है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये है मेन चीजें। बाकी 2019 में कौन सी हुई है, हाँ COP 25 है ना। अभी तो वैसे COP 26 भी हो चुकी है। तो ये है पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जिसको हम जानते हैं। और अभी जो सबसे रिसेंट जो अभी हुई थी उसका उसके भी आपको थोड़ा बहुत आप मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो। बाकी ये मतलब आपको एक मेजर पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के लिए क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओजोन के लिए क्या है, ओजोन लेयर डिप्रेशन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्लाइमेट चेंज के लिए और क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। पहला कौन सा हुआ था आपका, स्टॉकहोम कन्वेंशन एनवायरनमेंट को मेजर इशू, तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब है इम्पोर्टेंट पार्ट आगे का, एनवायरमेंटल लॉज इंडियन सिनेरियो में। ठीक है, 1 मिनट में देख लूं क्वेश्चन आंसर में अगर किसी ने कुछ लिखा है तो। मैम ये कौन सा CH है, अरे चैप्टर पूरा तो लिख दो, चैप्टर वर्ड मतलब इतना आप लोग क्या
शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हो। दिस इज 6 यूनिट है ये, ओके। ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज, तो इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में पढ़ा था, दूसरे पार्ट में अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं उनके बारे में। आप लोग ना जो भी क्वेश्चन है वो पुट कर दीजिए क्वेश्चन आंसर सेक्शन में, मैं लास्ट में आंसर करूंगी सारे एक साथ, ठीक है। अभी हम इन्वायरमेंटल लॉस के बारे में बात करते हैं। इन्वायरमेंटल लॉस क्या क्या है, तो सबसे पहले आपका हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। ये इन्वायरमेंट के दृष्टि से इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है। इसको हम अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे जो इन्वायरमेंट के पैरामीटर्स हैं उनको एक तरीके से कवर करता है। So this act give government a comprehensive power to take action in environmental matters, ठीक है। इस एक्ट में डिफाइन किया गया एनवायरनमेंट को एज वाटर, एयर एंड लैंड and the interrelationship which exists among and between water, air and land and human beings and other living creatures like plants, microorganism and property। इनके आपस के रिलेशन को और वाटर, एयर एंड लैंड को हमने इन्वायरमेंट एज ए इन्वायरमेंट डिफाइन किया गया है इसमें। इस एक्ट के अंदर हजार्डियस सब्सटेंसेस को भी डिफाइन किया गया है as any substances or preparation which by reason of its chemical or physical properties or handling is liable to cause harm to human beings, other living creature, like plants, microorganism, property or the environment। तो कोई भी सब्सटेंसेस जिसकी हैंडलिंग से या जिसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से इन्वायरमेंट, ह्यूमन बीइंग को या इन्वायरमेंट को किसी भी एस्पेक्ट को नुकसान होता हो। So this act coordinate action of the state government officers and other authorities for planning and execution of a nation-wide program for prevention, control and abatement of environmental pollution। तो किसी भी तरह के इन्वायरमेंट पोल्यूशन या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को रिलेटेड कोई भी एक्शन हो वो इसके अंदर आता है, इसलिए हम इसको अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं इन्वायरमेंट की दृष्टि से। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको पावर देता है टू स्टेट परमिसिबल लिमिट्स फॉर एयर वाटर पोल्यूशन एंड रिलीज ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस। और अगर वो लिमिट नहीं फॉलो की जा रही इंडस्ट्रीज के द्वारा तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए या उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए भी इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं। और ये सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और अब फिर अपना एक हर स्टेट का स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। जैसे राजस्थान का राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली का दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, एसपीसीबी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो ये एक्शन ले सकते हैं अगर ये इन्वायरमेंटल रूल्स, रेगुलेशन या परमिसिबल लिमिट्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो इसके अंदर 2 एक्ट हुए बेसिकली मेजरली। एक तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, दूसरा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। तो एक तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट हो गया 81 में और वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट हो गया 1974 में, ठीक है। ये 2 आए थे आपके बेसिक एक्ट्स। फिर 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही इन सबको एक बड़ा अम्ब्रेला एक्ट बना के और सारे इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट्स ले लिए गए थे। बट शुरू में सबसे पहले वाटर की प्रॉब्लम थी तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ
पोल्यूशन एक्ट 1974 आया। उसके बाद एयर की समस्या के समाधान के लिए एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर पोल्यूशन एक्ट 1981 आया। तो इनमें इन दोनों एक्ट्स में क्या प्रोविजंस है? 1974 में वाटर एक्ट आया, तो उसके अंदर क्रिएशन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का प्रोविजन था to lay down the standards for a stream or well and in consultation with the state government concerned modify annual और एनुअल दो स्टैंडर्ड्स। तो मतलब स्टैंडर्ड्स बनाए गए कि स्टीम्स और वेल्स के लिए कि कितना क्या 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 उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कितनी मात्रा में उसमें मेटल्स हो सकते हैं या एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्या परमिसिबल लिमिट्स है पानी पीने के पानी के लिए, क्या परमिसिबल लिमिट्स हैं इंडस्ट्री जो इफ्लुएंट छोड़ती है उसके लिए, है ना। ये जो एक्ट है it is responsible to plan and cost to the executed a nationwide program for the control and abatement of water pollution for in the Water Act 1974 and for the Air in Air Act 1981. It's also ensure the collection, compilation and publication of technical and statistical data related to water pollution and the major device for its effective prevention and control. इसके लिए भी स्टडीज या डेटा कलेक्शन सारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अंदर होता है। जो एयर एक्ट है उसके अंदर टेक्निकल असिस्टेंस गाइडलाइंस दी जाती हैं जो सीपीसीबी है उनको, ताकि एयर के रिलेटेड जो मैनुअल्स एयर स्टैंडर्ड्स के लिए कोड्स गाइड्स है ना, ताकि एयर पोल्यूशन का प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन किया जा सके, डेटा कलेक्ट किया जा सके, कंपाइल किया जा सके और पब्लिश किया जा सके एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। CPCB can lay down standards for quality of air. So उसमें क्या है, NAAQS नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है ना, जो हम उसमें अलग अलग लिमिट दी गई है कि कौन सा सब्सटेंस कितना हो सकता है एयर के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट एक्ट की, ये है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये पहला एक्ट इंडिया में आया इन्वायरमेंट की दृष्टि से, जो मैंने बताया ना कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के जस्ट बाद में इंदिरा गांधी जी ने उस समय ये एक्ट बनवाया था 1972 में। अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसमें भी इन्वायरमेंट को लेके काफी इंडिया का सीरियस मतलब वो है आउटलुक है। पेरिस एग्रीमेंट में भी इंडिया ने काफी मतलब एक अग्र भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से अभी भी इंडिया इज हैव लॉट ऑफ एंथुसियाज्म टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और अभी हम लोगों ने अपने अपने अलग अलग स्टैंडर्ड्स किए हैं कि 2050 तक हम ग्रीन हाउस गैस में इतना कमी ले आएंगे, है ना। 2070 तक हम जीरो कार्बन इमिशन के गोल की तरफ जाना चाहते हैं कि मतलब नेट जो मतलब हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना हम स्टोर भी कर ले रहे हैं कार्बन। तो ये इस तरह के ये चीजें अभी हैं इनटू द हाइलाइट्स। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या हुआ कि इसके अंदर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनका स्टैब्लिश किया गया। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर भी लाया गया, ठीक है। और भी अलग प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट लॉइन, प्रोजेक्ट ब्राउन एंटलर डियर, ये
इस एक्ट के अंतर्गत स्टार्ट किए गए, तो उससे कि इन स्पीशीज को बचाया जा सके। अब जो इंडिया में जो डबलिंग ऑफ टाइगर का जो था गोल था, उसको भी हमने अचीव कर लिया है। टाइगर की संख्या डबल हो गई है जब प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था उसकी वजह से, और अभी और भी बढ़ती जा रही है। टाइगर, काफी सारे टाइगर रिजर्व्स हैं जो काफी इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये एक्ट के अंतर्गत जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है उनको डिफाइन किया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स, definition of their power and duties, and what are the provision for punishment who don't follow and who harm the wildlife। तो ये सब इस एक्ट के अंतर्गत है। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। This act was passed to prevent deforestation, which result in ecological imbalance and environmental deterioration। फॉरेस्ट खत्म होगा तो आपका इकोलॉजिकल इम्बेलेंस होगा ही, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा ही। तो उस चीज को रोकने के लिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया। ठीक है, इसमें इस एक्ट के अंतर्गत की गवर्नमेंट्स भी आपके जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें नहीं कोई एक्टिविटी कर सकते, उसको भी प्रोहिबिटेड किया गया है इसमें। इस एक्ट के तहत जो फॉरेस्ट लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज कर नहीं कर सकते हैं बिना प्रायर अप्रूवल के। तो ये इस एक्ट के अंदर प्रोविजन है। फिर 92 में अमेंडमेंट भी किया गया फॉरेस्ट एक्ट में। उसके अंदर जो परमिशन देने के लिए जो एग्रीमेंट्स हैं उनको लाया गया कि क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं जिनके तहत फॉरेस्ट में आप नॉन फॉरेस्ट एक्सरसाइज को अलाउ तो कर सकते हो, लेकिन उसमें ट्रीज नहीं कटने चाहिए या मिनिमम डिस्ट्रॉय होना चाहिए फॉरेस्ट। उसके लिए ट्रांजिशन लाइन, सेस्मिक रिव्यूज, इन्वेस्टिगेशन, ड्रिलिंग और हाइड्रो इलेक्ट्रिकल टास्क के लिए परमिशन किस तरह से दी जाए। पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक टास्क है इसमें लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है फॉरेस्ट का, तो इसके लिए भी पहले से इंडोर्समेंट और अप्रूवल जरूरी है। इस एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन और रिव्यूज इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क इज एब्सोल्युटली prohibited without prior endorsement by central government. This act has made abundant arrangements for preservation and security of forest and prevention of deforestation. उसके अलावा आपका एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज हैं, जो वहाँ के ट्राइब्स हैं, उनके क्या अधिकार हैं फॉरेस्ट पे और वो किस तरह से यूज कर सकते हैं फॉरेस्ट को, इसके लिए ये एक्ट आया आपका 2006 में। ठीक है, तो इसमें इस एक्ट में रिकॉग्नाइज किया गया कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स के क्या क्या राइट्स है ना। लाइवलीहुड वो उसी के लिए डिपेंडेंट है ना पूरे तरीके से, पर वो उस तरीके से उस फॉरेस्ट को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट के रूप में और सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं उसका। दे कांट यूज इट एज अ बिजनेस बट दे कैन यूज इट फॉर देयर लाइवलीहुड, मतलब जो बेसिक नीड्स होती हैं उसके लिए। इस एक्ट के अंदर ये भी प्रोवाइड किया गया कि यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर पब्लिक यूटिलिटी फैसिलिटी किस तरह से मैनेज हो सकता है गवर्नमेंट एड के द्वारा। इस एक्ट के जो सेक्शन 3(1) अंडर द सेक्शन 3(1)(h) द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स have the right of agreement and conservation of all forest villages, vintage habitations,
unsurveyed villages in forest, whether recorded or notified or not into revenue villages, have been identified as of the one of the forest right for the forest residents, कि जो वहाँ के villages हैं और उनके जो residents हैं उनके क्या forest rights है, ये इस एक्ट के अंदर आपके आइडेंटिफाइड और नोटिफाइड किए गए हैं। अब ये तो हमने बात कर ली कि क्या क्या रूल्स अवेलेबल है इन्वायरमेंट के लिए, है ना, बट अब हमें ये जानना भी जरूरी है कि इन रूल्स का किस तरह से इन्फोर्समेंट हो सकता है, मतलब इन रूल्स को हम किस तरह से एक कह सकते हैं कि हम इन रूल्स को कैसे लागू करें, कैसे इन्फोर्समेंट हो इन रूल्स का। तो एक तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत जरूरी है ना, किसी भी प्रोजेक्ट का, तभी हमें पता चलेगा। तो ये चीज भी आपकी EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये आपका कंपलसरी है अभी। तो आप कोई भी मेजर प्रोजेक्ट बिना EIA के अप्रूवल के नहीं हो सकता, पहले उसका इम्पैक्ट असेसमेंट देखा जाएगा, फिर उसको अप्रूव किया जाएगा। सिटीजन एक्शंस एंड एक्शंस ग्रुप जरूरी है, कि जो एक NGOs होते हैं, सिटीजन्स के ग्रुप होते हैं, जो विलफुल इन्वायरमेंट डैमेज कर रहे हैं, उनको देखा जाए, उनको उनके खिलाफ पिटीशन, अभी PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये सब चीजें डाली जाती हैं ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान हो। फिर इंडिया में ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है ना, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस डायरेक्ट आप उसमें फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी वजह से भी काफी, क्योंकि ताकि इन्वायरमेंट को लॉस ना हो, उसके लिए काफी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। फिर पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द लोकल लेवल, ठीक है। तो उस तरह से पब्लिक अवेयरनेस, जैसे कि हम अलग अलग डेज सेलिब्रेट करते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, अर्थ डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, है ना, इस तरह के डेज हम सेलिब्रेट करते हैं। उससे क्या होता है कि लोगों में एक अवेयरनेस आती है कि हाँ अच्छा ये चीज है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट 5 जून को मनाया जाता है हर साल, तो उसका हर बार एक अलग थीम होता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज है, ये प्रॉब्लम्स है। अब आप मुझे उसमें क्वेश्चन आंसर सेक्शन में बताओ कि इन्वायरमेंट डे का क्या थीम था इस बार। 5 जून को 2021 वाले का, 22 का तो भी आएगा, है ना। एंड आप खुद भी सोचो कि आप किस तरह से हेल्प कर सकते हो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। जो वाइल्ड लाइफ वीक वगैरह मनाए जाते हैं उनमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुछ जैसे NGOs जैसे WWF वगैरह, इनमें आप एज ए वॉलंटियर जुड़ सकते हो। तो आप इन चीज़ों में, आजकल तो ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, फॉर्म वगैरह फिल करे जा सकते हैं। तो आप लोकल अगर कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो इससे आपको एक अवेयरनेस बढ़ेगी और आपको आगे किस तरह से वे फॉरवर्ड है उसका भी पता चलेगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। दीज आर माई मेल IDs, आई विल बी अवेलेबल ऑन दीज मेल IDs। ये नीचे वाला Gmail वाला पर्सनल है, ये इंस्टीट्यूशनल है, दोनों पे आप कर सकते हो। पर Gmail वाले पे कर दोगे तो ठीक रहेगा। और ये जो ऊपर वाला है ये है Kundan14_SES है, वो अंडरस्कोर है ना, वो शायद अंडरलाइंड है, तो अंडरस्कोर नहीं देखा हो आपने, तो ये है ना, Kundan14_SES@jnu.ac.in। और दूसरा है कुंदन देवल KUNDNDEVL@gmail.com। ये दोनों मेरे मेल IDs हैं, आप मेल कर सकते हो मुझे अगर कोई डाउट हो आपको या कुछ पूछना हो तो, और कुछ हेल्प चाहिए हो तो। और बाकी आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन में तो पूछ ही सकते हो, आपको कुछ पूछना है तो। सो दिस यूनिट इज फिनिश नाउ, ठीक है।
ये यूनिट आपका खत्म हो गया है। यूनिट 6 जिसमें हमने बात की थी इन्वायरमेंटल, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में और आपके जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कानून है, लेजिस्लेशन है, उसके बारे में। ठीक है, ये इंटरनेशनल वाले आपको बस एक मोटा मोटी तौर पे याद रखने की क्या क्या है और कौन सी इंस्टीट्यूट्स है। बाकी आपको इंडियन वाले पे फोकस करना है ज़्यादा, इन्वायरमेंट लॉस कौन से हैं। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जिसको हम अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं, इसके जो सब एक्ट्स हो गए हैं अब, पहले वो एक्ट वैसे पहले आए थे बट एक तरीके से अब इसमें सब कुछ कवर हो गया है। बाकी जो आपके पहले के एक्ट हैं कौन से, इन्वायरमेंट, वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। सबसे पुराना एक्ट कौन सा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और आपका शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसको शॉर्ट में अपन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बोलते हैं, जिसके तहत जो लोकली वहाँ पे डिपेंडेंट लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनके राइट्स को, फॉरेस्ट के जो राइट्स हैं उनको आइडेंटिफाई और उनको नोटिफाई किया गया है। ठीक है, ये तो आपकी बात हो गई ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज और किस तरह से क्या क्या उनको, इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या ऑलरेडी प्रोविजंस है लॉस के थ्रू और कौन से कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स लाए गए हैं। ठीक है, अब आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज क्वेश्चन आंसर सेक्शन में डाल दीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है? ठीक है, ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको मिल जाएगी, अभी मैंने लिंक शेयर किया है इस पे। ठीक है, ये वाली भी अभी देखो आप अपने क्वेश्चन आंसर चैट बॉक्स में, लाइव इवेंट Q&A सेक्शन में अभी मैंने लिंक किया है शेयर। इसके अंदर ये प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी आज वाली, प्लस पुरानी जो मैंने इन्वायरमेंट पोल्यूशन वाला जो 5th यूनिट पढ़ाया था उसकी भी मिल जाएगी, और जो 7th यूनिट है अभी मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में उसकी भी मिल जाएगी। प्लस आपका जो SOL के द्वारा प्रोवाइडेड जो स्टडी मटेरियल है हिंदी में इंग्लिश में, उसकी भी मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो इरेक भरूचा की बुक है, जो आपने पूछा था ना कौन सी किताब पढ़नी है, तो इन्वायरमेंट करके, इन्वायरमेंटल साइंसेस करके जो है, पर्यावरण विज्ञान करके हिंदी में, तो वो इंग्लिश वाली बुक की सॉफ्ट कॉपी भी है इसके अंदर, इसी फोल्डर में है सब कुछ, है ना। SOL कुंदन करके फोल्डर है, इसके अंदर आप क्लिक करो, खुल रहा है क्या, SOL EVS कुंदन करके, आप देखो उस पे एक बार डाउनलोड करके देखो, आज वाली प्रेजेंटेशन हो रही है क्या, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये लिंक आप अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना कि भाई ये वाले स्लाइड्स और नोट्स इस फोल्डर के अंदर है। ठीक है, अभी आप एक बार डाउनलोड करके देखो, लिंक ओपन करके देखो। देखो मेरे तो यहाँ से हो रहा है क्लिक करने से। आप देखो लिंक ओपन हो रहा है क्या, और प्रेजेंटेशन ये 6 यूनिट डाउनलोड करके देखो, ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज वाली हो रही है क्या, और मेरे को बताओ हो रही है कि नहीं, क्वेश्चन आंसर सेक्शन में लिख के, मैं वेट कर रही हूँ।
आप लोग बताओ मेरे को, कैन यू एबल टू, आप लोगों को दिख रहा है क्या? जस्ट टेल मी। ये मतलब डाउनलोड हो पा रहा है क्या? ओपन हो रहा है, ओके, डाउनलोड हो रहा है, ओके। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो, बाकी आज की क्लास हम फिर बंद करने वाले हैं। हेलो, हाँ हाँ, बस अभी वो बच्चों को मैं बस लिंक वगैरह शेयर कर रही थी। हाँ, क्या? हाँ, देख तो लिया है, उनको कर दीजिए, 2 मिनट बाद में कर दीजिए, 3:55 पे कर दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, आप ये डाउनलोड कर लो इस लिंक से, और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो। ये लिंक आप सब लोग कॉपी कर लीजिए, है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच।